In the last class, we had talked about the basics of your ninth and 10th standard, where you have studied about what is matter, what are different types of matter, how the matter is classified based upon the physical classification and the chemical classification. All those topics we had already covered in the previous part, that is part 1. अगर आपको वो पार्ट देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 में वीडियोस में देख सकते हैं. Now we'll start with another topic or the next topic of this chapter, which is your significant figures and scientific notation. We'll start with this topic now. Significant figure and scientific notation. So first of all, before starting with the topic, दिमाग में क्वेश्चन आता है, why do we need scientific notation, right? Why do we need scientific notation? Significant figure की हम इसके बाद बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं scientific notation की. देखो, you know, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, we often deal with either large numbers or small numbers, right? Very large number, very small number. For example, speed of light. What is the speed of light? We all know it is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. It is a very large number. Another example, Avogadro's number. Avogadro's number, which is 6.023 into 10 raised to power 23, right? Again, a very large number. Now, we also deal with very small numbers. For example, mass of an electron, which is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kgs. Again, very small number. Radius of an atom or the size of a molecule. All these are very, very small numbers, right? So when we write these numbers, normally it is very difficult. It is very difficult to write these numbers normally, right? And it increases the chances of errors. While writing these numbers, the chances of errors will increase. So इसलिए हमको चाहिए scientific notation, right? Now, what do we mean by scientific notation? Scientific notation क्या होता है? What is scientific notation? Scientific notation में basically what do? You express any number in the form of a into 10 raised to power n. A into 10 raised to power n, where a is your number between 1 to 10. A is your number between 1 to 10, and n is nothing but a positive or a negative integer. A positive or a negative integer, right? For example, let's say 42,000. I have a number which is 42,000. So how do I write this number? How do I write this number? कि ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ठीक है? बट अभी के लिए आपको मतलब समझना है, वेयर ये 4.2 into 10 raised to power 4 में 4.2 आपका a है and this 4 belongs to n, right? It can be positive and negative, वो हम rules में देखेंगे, ठीक है? So let's move to the next slide, which is, these are some of the rules. Rule 1 says, move the decimal so that only one non-zero digit remains before the decimal. Rule number 2, अभी सबके एग्जाम्पल्स हम लेंगे. सो रूल 1 में क्या बोला? मूव द डेसिमल सो दैट ओनली वन नॉन जीरो डिजिट रिमेन्स बिफोर द डेसिमल. आपको डेसिमल इस तरह से मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, बट आपका डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, राइट? स्टार्टिंग विद 1. ओके. रूल 2 इज, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल मूव्स. आप जो डेसिमल को मूव कर रहे हैं लेफ्ट में या फिर राइट में, वो आपको मूव्स काउंट करने हैं कि आप कितना आगे या पीछे डेसिमल को लेकर जा रहे हैं. रूल 3, इफ डेसिमल मूव्स लेफ्ट, पावर इज पॉजिटिव. वेरी इंपॉर्टेंट.
and if decimal moves right, power is negative. ओके, सो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं. लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज लेट्स से 5600. फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 5600. राइट नाउ व्हाट डू वी डू? मूव डेसिमल 3 places टू लेफ्ट. लेफ्ट में क्यों करना है? मेरा क्या मोटिव है? मुझे डेसिमल से पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट चाहिए. तो एक नॉन जीरो डिजिट मतलब ये वाला मुझे चाहिए. इसका मतलब मेरा डेसिमल यहां पे कहीं आना चाहिए. राइट सो अगर मैं लेफ्ट में मूव करती हूँ 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप. राइट आई नीड टू मूव टू 3 steps टू द लेफ्ट. लेफ्ट में मुझे जाना है. सो द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल वुड बी 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर. कितने स्टेप मूव किए? 3. 10 रेज टू पावर 3. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं. लेट्स से 2380000. सच अ बिग नंबर. राइट नाउ मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ही नॉन जीरो डिजिट चाहिए और यहां पे मुझे डेसिमल डालना है. तो मुझे लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा. 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप. राइट 6 स्टेप मैंने मूव किया. सो इसका साइंटिफिक नोटेशन 2.38 इंटू 10 रेज पावर 8 सॉरी 6 स्टेप्स मैंने मूव किया. एंड जब हम लेफ्ट में मूव करते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जब हम लेफ्ट में मूव करते हैं सो पावर आपकी पॉजिटिव आती है. इसलिए इसमें भी पावर पॉजिटिव थी और इसमें भी पावर पॉजिटिव थी. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे 98765432 राइट ना मुझे क्या चाहिए? मुझे 9 के बाद यहाँ पे डेसिमल चाहिए. तो कितने स्टेप मुझे मूव करना पड़ेगा टू लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स. सो आंसर वुड बी 9.87654321 into 10 raised to power 8. अंडरस्टूड? आई होप ये समझ आया होगा आपको. ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ही करना है. अभी एक काम करते हैं. एक दीज वर वेरी लार्ज नंबर, छोटे नंबर के एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे 0.0000067. राइट नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? मुझे डेसिमल मुझे लाना है 6 के पास. 6 के बाद मुझे यहाँ पे डेसिमल चाहिए. तो डेसिमल अभी प्रेजेंट कहां पर है? इधर. सो आई नीड टू मूव टू 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स टू राइट. मतलब नेगेटिव में पावर आएगी -5. सो आंसर वुड बी 6.7 इंटू 10 रेज पावर -5. बिकॉज हम डेसिमल राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए पावर आपका नेगेटिव में आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इफ यू वांट वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल. जैसे दिस वुड बी योर एग्जाम्पल नंबर 5. 0.00000089. राइट नाउ आपको डेसिमल कहाँ चाहिए? 8 के बाद. एक ही नॉन जीरो डिजिट चाहिए डेसिमल से पहले, तो 8 के बाद मुझे डेसिमल चाहिए. अभी आपका डेसिमल कहाँ है? इधर. सो यू नीड टू मूव टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्टेप्स टू द राइट. इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 8.9 इंटू 10 रेज टू पावर -8 नॉट +8. आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो, इसलिए पावर वुड बी हैविंग अ नेगेटिव साइन. ठीक है, सो नेक्स्ट इज these are some of the practice question you can practice at home. और इसके आंसर्स you can write in the comment box. Otherwise we will discuss these questions in the next class. ठीक है, आपको यहाँ पे आई थिंक 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए. सो आपको वो करना है नेक्स्ट क्लास के लिए. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज व्हाट आर
सिग्निफिकेंट फिगर्स। साइंटिफिक नोटेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। कोई भी आप मेजरमेंट करते हो, एग्जाम्पल हम लेंगे अभी, आपको तब और अच्छे से समझ आएगा, बट द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक फिगर इज, आप कोई भी मेजरमेंट करते हो उसमें जितनी भी मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है। ओके, सो दे इंक्लूड ऑल सर्टेन डिजिट्स एंड वन अनसर्टेन एस्टिमेटेड डिजिट। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो दे इंडिकेट प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। प्रिसीजन मतलब द वैल्यू विच इज वेरी नियर टू द ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन मतलब जो वैल्यूज आपस में ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज जो होती हैं उनको प्रिसाइज्ड वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल लेते चलेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट रूल सेज all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. For example, non-zero मतलब जो जीरो नहीं है, 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल 235, ठीक है, कोई भी जीरो नहीं है तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 7854, कोई भी जीरो नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सो सब सिग्निफिकेंट है, सो टोटल कितने डिजिट हुई, 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट्स। 98.76, कोई भी जीरो नहीं है, सो टोटल डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट्स, ठीक है। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट, कितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती है, राइट। फर्स्ट रूल से जितनी भी आपकी नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सब सिग्निफिकेंट होती है। Okay, let's move to the next rule. Zeros between non-zero digits are significant. For example, 1005. ठीक है, now there are two zeros between two non-zero digits which is 1 and 5. So ये दोनों जीरो को भी आप significant काउंट करोगे, so total would be 1 2 3 and 4. टोटल डिजिट्स हो गई आपकी 4, 1005, ठीक है। ये जो दो जीरोज हैं ये दो नॉन जीरो विच इज 1 and 5 उनके बीच में प्रेजेंट है, राइट। सो वो भी आपकी सिग्निफिकेंट काउंट होती है। एक और एग्जांपल, लेट्स से 205, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, सो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। थर्ड रूल सेज लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज मतलब जो बाद में जीरोज आती है। फॉर एग्जाम्पल 2.300, लीडिंग जीरो जो मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2.30.00039, ओके, ऑल दीज जीरोस विल नॉट बी काउंटेड, ये नहीं काउंट होंगी और ये ही काउंट होंगी, सो देयर विल बी टू नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। नेक्स्ट रूल इज ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूल क्या बोल रहा है कि डेसिमल के बाद जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.300, नाउ ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, ये तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट है रूल 1 के अकॉर्डिंग। नाउ ये दोनों जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, सो टोटल वुड बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अनदर एग्जाम्पल, रूल 3 and 4 को मिक्स कर लेते हैं ये एग्जाम्पल में। 0.4500, now leading zero will not be significant as per rule 3, non-zero will be significant, non-zero will be significant as per rule 1, and trailing zeros will also be significant as per rule 4. So total there are 4 significant figures. I hope this is understood to you, right? Next is इससे पहले एक 2-3 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, जैसे कि नाउ यू सी 345, ठीक है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 0.000560, इसमें बताना है आपको। देन 1002, ये आपको बताना है। देन 8.090, लेट्स से, ये आपको बताना है, ठीक है। 345, ऑल आर नॉन जीरो,
नॉन जीरो है तो तीनों सिग्निफिकेंट होंगी, 1 2 3, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आपके जो लीडिंग जीरोज हैं वो तो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, एंड 5 and 6 will be significant because non zero है, and 0 is your trailing zero, so total would be 3. Next, zeros present between two non-zero digits will be significant, so total 4, and this is significant, 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 and significant. It would also have 4 significant figures. Clear? So let's move to the next part, which is how to like whenever you subtract or you add, then what happens? आपको अगर किसी भी दो नंबर को ऐड करना है और या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आंसर होगा वो आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है, ठीक है? सो it says answer should have the same number of decimal places as the measurement with the fewer decimal places. Example ले लेते हैं, let's say 12.45, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है? इसको आपको ऐड करना है लेट्स से 4.2, ठीक है? ऐड करोगे तो क्या आएगा? इट इज 56.61, ठीक है? ये आंसर है। नाउ रूल क्या बोल रहा है? आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द मेजरमेंट विद द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस। नाउ इन दोनों मेजरमेंट में से किसमें फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस है? सेकेंड वाली में एक ही डेसिमल प्लेस है। इसका मतलब आपको आंसर भी इसी फॉर्म में लिखना है कि उसमें भी सेम fewest decimal places. So 16.65 को what will you write as per one decimal place? It would be 16.7. So your answer would be 16.7 but not 16.65. Now मैंने 5 को 7 में क्यों लिख दिया है वो अभी हम राउंडिंग ऑफ में देखेंगे, हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है? So I hope this is clear. Whenever you add or subtract two numbers, आपको उन दोनों नंबर में देखना है किसमें fewest decimal place है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर रिपोर्ट करना है, ठीक है? Next is when you multiply or divide two numbers. Answer should have the same number of significant figure as the factor with the least number of significant figure. दोनों numbers में से जिसमें भी कम significant figure होगी आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर रिपोर्ट करना है। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल इज लेट्स से 4.56 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, राइट? इसका आंसर वुड बी 483.6, 6.384 वुड बी द आंसर, ठीक है? अब आपको ये आंसर ऐसे रिपोर्ट नहीं करना है, आपको आंसर कैसे रिपोर्ट करना है? लीस्ट नंबर ऑफ, इन दोनों में से किसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? फर्स्ट वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। सेकंड वाले में कितनी है? 2। तो आपको आंसर भी ऐसे रिपोर्ट करना है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो। अभी जो आपने आंसर लिखा है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। मुझे इसको 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सो मैं क्या लिखूंगी? 6.4. दिस वुड बी योर correct answer for the representation of the digits present in the answer of multiplication and division. I hope this is clear. ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है? राउंडिंग ऑफ नंबर्स हम कैसे करते हैं वो अभी हम बात करते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है? इसमें भी आपके 3 रूल होते हैं। रूल 1 इज डिजिट लेस देन 5, उसको आप कैसे राउंड ऑफ करते हो? आपको क्या करना होता है? जो पहली डिजिट होती है उसको एज इट इज लिख देना होता है। फॉर एग्जाम्पल 3
3.742 लेट्स से कोई नंबर है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको क्या करना है, आपको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। अगर लेट्स से आपको 3 में करना है, ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 3 में ही करना है, बट लेट्स से कोई आंसर है, आपको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? जो आपका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में यूज हुआ था कॉन्सेप्ट, मैंने बोला था मैं राउंड ऑफ में बताऊंगी। तो लेट्स से अभी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो रूल 1 सेज डिजिट लेस देन 5। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पहले मैं लिख लेती हूँ, 3.7, नेक्स्ट आएगा 4 आना चाहिए, बट ये जो 4 है ये 5 से छोटा है। ठीक है, 5 से छोटा है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 4। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी 3.74 इफ यू वांट टू राइट दिस नंबर इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नेक्स्ट रूल सेज डिजिट्स ग्रेटर देन 5। लेट्स से 8.768, इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेट्स से मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, 3 में करना है। ठीक है, सो 3 पहले मैं लिख लेती हूँ, 3.7, नेक्स्ट आना चाहिए था 6, बट 6 क्या है? 5 से बड़ा है। ठीक है, अगर ये 5 से बड़ा है तो 6 की जगह पे मैं उसका नेक्स्ट नंबर लिखूंगी विच इज 7, 6 नहीं लिखूंगी। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 एज इट इज आ जाता, जो 5 से छोटा है, रूल 1, बट 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, सो इसलिए वो एक नंबर इंक्रीज होके 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड रूल, राउंडिंग ऑफ व्हेन द डिजिट इज एग्जैक्टली 5। हमने देख लिया कि जब, हमने क्या देखा कि जब आपका डिजिट लेस देन 5 होता है एज इट इज लिखना है, मोर देन 5 होता है एक नंबर बढ़ा देना है, बट क्या करना है जब एग्जैक्टली 5 हो? So as per your NCERT, if the digit to be dropped is 5, if the preceding digit is even, leave it unchanged, and if the preceding मतलब पहले जो digit आ रही है, if it is odd, increase it by 5. Example, let's say 2.25, 2.25. ठीक है, इसमें अभी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? लेट्स से मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी? 2 पॉइंट, एक और नंबर आना चाहिए 2 बनाने के लिए, नॉन जीरो एक ही नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना था। ठीक है, क्या मैं 2 लिखूंगी? हाँ, मैं 2 लिखूंगी, बिकॉज इससे जो प्रीसीडिंग नंबर है वो आपका इवन है, तो उस वो नंबर एज इट इज आ जाएगा 2। एक ऑड का केस ले लेते हैं। ठीक है, ऑड का केस, लेट्स से 5.450। ठीक है, इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। 3 में लेट्स से मुझे कन्वर्ट करना है, सो आई वुड राइट 5.4, नेक्स्ट क्या लिखूंगी मैं? 5 एज इट इज अनचेंज्ड। ठीक है, चेंज का एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 2.35। ठीक है, इसमें ये टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, सो मैं कैसे लिखूंगी? 2 पॉइंट, अब मैं 3 लिखूंगी कि 4 लिखूंगी? मैं क्या लिखूंगी? 4, बिकॉज ये जो आपका 3 है दिस इज अ ऑड नंबर, तो ये पूरा आपका 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2.4। क्लियर? ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस टॉपिक। इस टॉपिक में, सॉरी, इस so with this we complete this part which is part 2, एंड इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा है? इस पार्ट में हमने देखा है, एक बार आपको फिर से पूरा रिकैप दे देती हूँ। इस पार्ट में हमने क्या देखा है? साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम a इंटू 10⁻n हम यूज करते हैं, जिसमें आपका जो a है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, बट लेस देन 10 होता है। ठीक है, और n जो आपका है वो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर
हो सकता है। ठीक है, फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे कि जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो डिजिट वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, जो जीरोस बिटवीन नॉन जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, जो लीडिंग जीरोस होते हैं, लीडिंग जीरोस दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स हम वी हैड कवर्ड। देन हमने राउंड ऑफ में पढ़ा था कि अगर आपका नंबर इक्वल टू 5 है, सॉरी इफ हमने पढ़ा था कि इफ आपका जो नंबर है वो लेस देन 5 है तो वो एज इट इज रह जाएगा अनचेंज्ड। अगर ग्रेटर देन 5 है तो आप एक नंबर से उसको इंक्रीज कर दोगे। इक्वल टू 5 है उसमें आपके दो केस आते हैं। इक्वल टू 5 में अगर लेस दे जो आपका प्रीसीडिंग नंबर है अगर वो मोर देन 5 है, ग्रेटर देन जो प्रीसीडिंग नंबर है अगर वो इवन समझ आए होंगे। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट यू कैन लीव द क्वेश्चन इन द comment section and I'll surely reply to that question in my next video. So stay tuned. Please share, like, share and subscribe my channel, and we'll complete the syllabus as soon as possible, and